Good morning, students. Welcome again to our last topic of chapter Federalism. Dear student, this chapter is very important for your examination point of view and for the competitive examination. What is the thing in this chapter which make it very important? Let's start. Dear student, before this topic we had studied that in this federalism there is two level of government or two tier of government, है ना? But this is the topic where we are going to study about the third level or third tier of government, third level of government, that is the local government. Especially in India. India is such a vast country that if you understand about it, then you will find out that the state like Uttar Pradesh, the state like Bihar and Haryana, these states are so big, so large that the European continent have these states are so large that the continent form. Okay, so how can the government will manage all these things? If the states are so big as a continent, if the states are so big as a country, then the process will be different. So this is the third level of government, that is the आपका decentralization. Here you are saying that कि the resource or the central government, है ना, the resource of central government is given to the local government. The resource, central government give the resource like money, like आपका power to the local government. If we study, if we define it about the decentralization, then we find out that कि when the power of central and state is taken, when the power of center and state is taken and given to the local level, then that is known as decentralization. What are the things which we are going to study here? The first we are going to study about the meaning of decentralization. Then after we will study basic idea before decentralization, and lastly we will study about the step toward decentralization. These are the three topics which we are going to study in this topic. Let's start. Definition of decentralization or the meaning of decentralization. As I told you earlier, when the power is taken from the central government and the state government, है ना, and given to the local government, this is known as decentralization. Okay, the basic idea behind decentralization is that there has a large number of peoples in the village and they can solve the problem and the issues themselves, है ना. गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं, अपनी इश्यूज़ की समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं. तो उनको जो पावर दिया जाए तभी उसका समाधान कर सकते हैं. जस्ट एज यू आर सेइंग दैट कि विलेज ग्राम पंचायत ना, इन विलेज ग्राम पंचायत वी ऑफन सी दैट कि द पीपल्स ऑफ विलेज दे सॉल्व द प्रॉब्लम देमसेल्फ. सो दिस केम इन द कैटेगरी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. When the process of decentralization was started and what are the things on this? बेसिक आइडिया बिफोर डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग देखते हैं कि इसकी मेन आइडियाज़ क्या है, इसके डिसेंट्रलाइजेशन लाने का कारण क्या था. पहला कारण था आपका सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशूज एट द लोकल लेवल. नो नीड टू गो टू द पुलिस, नो नीड टू गो टू द अपर लेवल, है ना. इफ़ यू गो टू द पुलिस, इफ़ यू गो टू द अपर लेवल, वी शुड लॉस द मनी, हम पैसा ख़त्म करेंगे एज वेल एज टाइम, है ना. तो गांव की समस्या हम गांव में ही दूर कर लें, है ना. सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज एट द लोकल लेवल. फर्स्ट आपका फर्स्ट थिंग. द सेकेंड इज पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल. भाई हमारे गाँव की क्या समस्या है, आई नो इट बेटर देन द MP देन MLA. इज इट नॉट? हमारे गाँव में खड़ंजा कहाँ बिछाना है, नाली कहाँ बिछानी है, वी नो इट वेरी वेल. आपका जो MP है या MLA है, हाउ कैन दे नो? सो द पीपल ऑफ विलेज दे नो इट बेटर वेरी वेल. थर्ड आपका है बेटर आइडिया ऑन वेयर वी स्पेंड द मनी, हाउ एंड हाउ मच. वहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, हमें किस चीज़ में पैसा खर्च करना है, कौन सी समस्या ऐसी है जहाँ पे हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना है. द विलेज पीपल नो इट वेरी वेल. सो वाई कांट द विलेज पीपल डील्स देयर प्रॉब्लम? दैट इज थर्ड. The fourth reason behind the decentralization is that people participation. जब लोग पार्टिसिपेशन करेंगे गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को चलाने में, तो क्या होगा आपका, दे फील दैट कि दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. पावर इज केम टू देम. पावर शेयरिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, पावर शेयरिंग आपका
थर्ड लेवल तक या लोअर लेवल तक पहुंच रहा है, लोगों को ये विश्वास होगा कि हाँ दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द फोर्थ रीजन. एंड द फिफ्थ रीजन इज दैट टू रियलाइज वन गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, है ना. डेमोक्रेसी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, डीपनिंग द डेमोक्रेसी हो रहा है यहाँ पे. डेमोक्रेसी आपका अपर लेवल पे ही नहीं काम कर रही है बल्कि लोअर लेवल पे जा रही है ना. दैट इज डीप इन द डेमोक्रेसी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन आपका डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द बेसिक आइडिया बिफोर द डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्टेप टेकन टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. महात्मा गांधी ने भी कहा था, क्या कहा था, the entire efficiency of the country of Indian democracy should be based upon the one popular elections to the village people, village panchayat, and indirect election from the panchayat to the state assembly and from the state assembly to the parliament. Okay, means people of the villages, they will participate in the election and they will give the member to the parliament, state assembly to the parliament. तो एक तरीके से चैन बनेगा, मतलब कि गांव के लोग जो हैं अपने उम्मीदवार को चुनेंगे एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव वेल टू द पार्लियामेंट. महात्मा गांधी का ये आइडिया आपका बिफोर इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन हम लोग आज़ादी के बहुत बाद इस चीज़ पे ध्यान दिए. महात्मा गांधी की बात हम करते हैं तो फिर 1947 के पहले इन्होंने जो पंचायती राज की परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, उन्होंने दिया था. बट दैट वाज एक्सेप्टेड वेरी लेट आफ्टर इंडिपेंडेंट. आर्टिकल 40 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, द स्टेट शैल इन्वोट द कॉन्स्टिट्यूशनल विलेज पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बात की थी. तो ऑन द बेस ऑफ दीज टू थिंग्स, गांधी जी's व्यू एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एट लास्ट व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1932. In the year 1992, our constitution was amended. That was the our constitution was amended, and the third type of government was formed. That was the local level, third level of government or the local level. This questions always came in the examination when the amendment was done in the year 1992. Which amendment? 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, है ना. 73वां और 74वां जो संशोधन किया गया संविधान का, उस संशोधन के बाद आपके देश में थर्ड लेवल गवर्नमेंट लाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज. अब इसके साथ जब एक अमेंडमेंट किया गया तो क्या क्या चीज़ें दी गई आपके यहाँ पे. बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोकल लेवल. इसके तहत क्या किया गया, पहला दिया गया आपका कि इट इज़ आपका कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी. ये संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया. मैंडेटरी मतलब जरूरी कर दिया गया कि आपका लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शन होगा हर 5 साल में. इलेक्शन लोकल लेवल पे हर 5 साल में इलेक्शन होगा. दैट बिकम मैंडेटरी. द सेकंड वाज दैट कि आपका हर इलेक्शन के तहत की तरह यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विल बी फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर बैकवर्ड कास्ट. मीन्स सीट्स वेयर रिजर्व. सीटें क्या हो जाएंगी, सीट रिजर्व की जाएंगी. लोकल गवर्नमेंट आपका ST, SC और OBCs को भी सीट रिजर्व करके दी जाएंगी, सो दैट ST, SCs एंड OBCs का भी डेवलपमेंट हो सके, है ना. और वो भी सरकार की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में अपने आप को ला सकें. थर्ड आपका दिया गया 1/3 सीट आपका वुमेंस के लिए ही रिजर्व किया जाएगा. दैट इज़ ओनली फॉलोड इन द लोकल गवर्नमेंट. बात बार बार उठती है कि इसको हमें आपका स्टेट असेंबलीज एंड द लोकल आपका पार्लियामेंट में भी लानी है इस बात को, लोकसभा इलेक्शन में भी लाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. इट इज़ अ लोकल गवर्नमेंट वेयर द 2/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन, और ये महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है. इसके अलावा 2 चीज़ और भी किया गया है. सेपरेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया. सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, है ना. और ये कहाँ पे बनाया गया, जिसका काम क्या है, पंचायत इलेक्शन गांव के लिए, रूरल एरिया, और म्यूनिसिपल इलेक्शन फॉर द अर्बन एरिया को हेल्ड करे रेगुलरली, है ना. रेगुलरली हेल्ड करने के लिए आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया. और आपका जो पांचवा यही है कि एवरी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट कांट रन विदाउट मनी. सो फॉर मनी, स्टेट गवर्नमेंट required to share
पावर एज वेल एज रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट, है ना। जब पावर और रेवेन्यूज मिलेगा आपका लोकल गवर्नमेंट को, तभी लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका समय समय पर लोकल गवर्नमेंट को पावर भी देगी और रेवेन्यूज भी देगी, सो दैट द पंचायती राज और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल they can do the work for the betterment of their localities. Okay, so these are the 5 provisions which was done in the 73rd and 74th amendment, which was made in the country in the year 1992. After that, कि इसके तहत क्या क्या चीज़ किया गया। 2 प्रकार की गवर्नमेंट बनी, एक तो अर्बन लोकल के आपका रूरल एरिया में बनी, दैट इज़ नोन एज पंचायती सिस्टम, पंचायती राज, और अर्बन बनी दैट इज़ नोन एज म्यूनिसिपलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्ट्रक्चर क्या है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपका स्ट्रक्चर 5 नंबर में आता ही है। तो इसके तहत क्या किया गया, सबसे पहले गांव में इलेक्शन होगा, पंचायत, है ना, विलेज के लेवल पर ग्राम सभा बनेगी एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा मिलकर क्या बनाएंगे, पंचायत, ग्राम पंचायत बनाएंगे। ग्राम पंचायत मिलकर आपका पंचायत समिति बनाएंगी और पंचायत समिति मिलकर आपका जिला परिषद बनाएंगे। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका पंचायती राज। तो फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। इससे क्या होगा, एक चेन बनेगी एंड द व्हेन द मनी विल कम फ्रॉम पावर आपका जिला परिषद के पास आएगा, दे विल गिव टू द पंचायत समिति, पंचायत समिति आपको ग्राम पंचायत को देगी और ग्राम पंचायत आपको आपका विलेज लेवल पे ग्राम सभा को पैसा देगी और विलेज ग्राम सभा काम करेगी अपने क्षेत्र के, अपने गांव के विकास के लिए, अपने ग्राम के विकास के लिए। ओके, और वैसी चीज़ यहाँ पर दी गई है द अर्बन एरिया। जो छोटा सा शहर होगा, टाउन होगा, वहाँ पे आपका बनता है म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो हेड होता है, दे आर द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, इज हेड, है ना, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन का हेड होता है। यहाँ पे आपका हमने बताया कि सरपंच यहाँ का हेड होता है और यहाँ का म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है। अगर बड़ा शहर है लाइक आपका लखनऊ, लाइक कानपुर, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, है ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निगम, नगर निगम, यह नगर पालिका और ये नगर निगम, है ना। और जो इसका हेड होता है दैट इज मेयर, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज मेड इन द कंट्री सो दैट द लोकल गवर्नमेंट विल रन फ्लुएंटली इन द अर्बन एरिया एज वेल एज इन द रूरल एरिया। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक we have certain assignment. I think that you should do the assignment very easily. पहला क्वेश्चन तो दिया गया है आपका कि हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको जो दिया गया था कौन सा था, हमने बात किया 73rd एंड 74th। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का आपको इंपॉर्टेंस बताना है। कौन कौन से 5 आपको चेंजेस किए गए थे संविधान में, है ना, इसके बारे में हमने बताया आपका, है ना। और लास्ट में आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ रूरल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। रूरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, सो इन दिस वे this is a chapter, in this way the chapter is finished beta. If you have if you have queries, then you can ask the question through comment or you can call me. Okay, we will come with the next chapter in the next video. Till then, stay home. Thank you.